सॉल्यूशन केमिस्ट्री क्लास 12 का ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इजी चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन के साथ। सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। तो सॉल्यूशन एक टाइप का मिक्सचर है, लेकिन ये होमोजेनियस मिक्सचर है। ये दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। क्लास 12th में हम बाइनरी सॉल्यूशंस की बात करेंगे, यानी दो कंपोनेंट्स जिसमें एक सॉल्वेंट होगा और एक सॉल्यूट होगा। नॉर्मली जो सॉल्वेंट होता है वो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है और सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल जैसे पानी रखा होता है ग्लास में और उसमें हम नमक डिसॉल्व करते हैं। सो पानी मीन्स वाटर वर्क हेयर एज सॉल्वेंट, वेयर एज सॉल्ट that is common table salt NaCl act as solute। और उसको जब हम मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, यानी मिक्सचर जो तैयार होता है that is called solution। Simply solution is equal to solvent plus solute। Maybe sometimes more than one solutes are also present, but here in this chapter we are only talking about the binary solution, that is one solvent and one solute। Since there are so many different type of mixtures, therefore we have to be very clear about the mixtures or solutions। There are altogether 9 possible type of solutions। These are types of solution, that is first of all gaseous solution। So there are 3 type of gaseous solution, and these are if the solute particle is gas and solvent is all the time it is gas, because it is a type of solution that is gaseous solution। So the larger amount is gas. When gas type of solute is dissolved in gas type of solvent, it is called gaseous solution। And the best example is mixture of oxygen and nitrogen। In the other hand, when solute is liquid and solvent is gas, then it is also known as gaseous solution। And the best example is chloroform mixed with nitrogen। Again, when solid is mixed in solvent, that is gas, it is again a type of gaseous solution। बहुत ध्यान से समझिएगा, सॉल्वेंट हमेशा यहाँ पे गैस है। फॉर एग्जाम्पल कैम्फर, कैम्फर यहाँ पे सॉलिड है और नाइट्रोजन यहाँ पे गैस है। कैम्फर इन नाइट्रोजन इज द example of this type of solution, that is solid in gas। और इसके आगे फिर दूसरे solutions को बनाते हैं। Other 6 types of possible solutions are, the second category type of solution is liquid solution, in which solute is either gas, liquid or solid, but solvent is all the time it is a liquid। When gas dissolved in liquid, it is a type of liquid solution, and example is oxygen dissolved in water, oxygen dissolved in water। When liquid solute dissolved in liquid solvent, it is again a type of liquid solution, and the example is ethanol dissolved in water, ethanol dissolved in water। When solid solute is dissolved in liquid solvent, it is again a type of liquid solution, and the example is glucose dissolved in water, glucose dissolved in water। Another category is the solid solution। In solid solution, the solvent is always solid, and solutes are of different phases, that is gas, liquid and solid। Now gas dissolved in solid, and the example of this type of solution is solution of hydrogen in palladium, Now when liquid dissolved in solid, it is again a type of solid solution, and the example is amalgam of mercury, that is liquid, dissolved in sodium, Now when solid solute is dissolved in solid solvent, it is again a type of solid solution, and the example is copper dissolved in gold,
इसे नोट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसके बाद कंसंट्रेशंस, सॉल्यूशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है कंसंट्रेशन का। इसमें रॉल्ड्स लॉ, हेनरी, पार्शियल प्रेशर और फाइनली फिर ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। लेकिन उससे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है कंसंट्रेशन का, जिससे बोर्ड में भी खूब क्वेश्चन आते हैं और नीट में भी, मेडिकल एग्जामिनेशंस में भी आते हैं। और ये जो भी आपने टाइप्स देखे, इससे डायरेक्ट वन वर्ड के क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो कंसंट्रेशन देखते हैं हम लोग। एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशंस। इस सेक्शन से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं और मैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व भी करूँगा, बट उससे पहले सभी टाइप के एक्सप्रेशंस को देख लेते हैं जो कि किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के लिए हम मेज़र के लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहला मास परसेंटेज, W/W, दैट इज वेट बाय वेट। इसका सिंबॉलिक मतलब होता है W/W, V/V, W/V। इसका मतलब है कि वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और वेट बाय वॉल्यूम। So the very first one is mass percentage. Mass percentage of component is equal to mass of the component in the solution divided by total mass of the solution into 100. For example, अगर ये कहा जाए कि 10% ग्लूकोज solution by mass, it means कि 100 ग्राम का solution है, उसमें 10 ग्राम ग्लूकोज है। 100 ग्राम का टोटल सॉल्यूशन है और उसमें 10 ग्राम ग्लूकोज है। तो इसका मतलब हो गया कि 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन बाय मास। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट, दैट इज V/V। यानी अब यहाँ वॉल्यूम की बात होगी, यहाँ मास की बात हो रही थी, यहाँ वॉल्यूम की बात होगी। आगे हम मोलैरिटी, मोलैलिटी, ppm, नॉर्मेलिटी ये सब पढ़ेंगे और कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। बिल्कुल सिंपल एस्पेक्ट्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार समझ में आ गया तो फिर इसमें आपकी प्रॉब्लम, इसमें कोई गलती होती ही नहीं है। तो वॉल्यूम परसेंटेज अगेन सेम टाइप का होगा, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। यानी अगर ये कोई कहे कि 100 जो क्या बोलते हैं 10% वॉल्यूम का कोई सॉल्यूशन है इथेनॉल का, 10% इथेनॉल बाय वॉल्यूम प्रेजेंट इन 100% या प्रेजेंट इन एनी सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि 10 ml इथेनॉल 100 ml के सॉल्यूशन में प्रेजेंट था। ये हो गया वॉल्यूम परसेंटेज, मास परसेंटेज, और ये हो गया वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, नाउ द नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, दैट इज W/V, यानी वेट, W फॉर वेट अपॉन वॉल्यूम। सो it is very simple, that is mass of the solute upon 100 ml of solution। और ये नॉर्मली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है या माइक्रोबायोलॉजी के रिसर्च में यूज़ होता है, जहाँ पे बैक्टीरिया या फंगल या वायरल या प्रोटोजोवन काउंट्स को किल करने के लिए पर्टिकुलर ड्रग्स का यूज़ करते हैं, जैसा कि मैं भी कभी कभी इस मेजरमेंट का यूज़ करता हूँ। इसके लिए हम माइक्रोपेपेट्स का और मेजरमेंट यूनिट्स का यूज़ करते हैं। सो इट इज़ मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसके अलावा ये और भी छोटी यूनिट में यूज़ किया जा सकता है, बट ये स्टैंडर्ड यूनिट है। नेक्स्ट ppm। ppm भी नॉर्मली लैब में ही यूज़ होने वाली, स्पेशली फार्मास्यूटिकल लैब में या माइक्रोबायोलॉजी की लैब में या बायोकेमिस्ट्री की लैब में यूज़ होने वाली यूनिट में से है। नॉर्मल लैब में इसे यूज़ नहीं होता है इसका ज़्यादा। तो पार्ट्स पर मिलियन में जब पर्टिकुलेट जो अमाउंट है या जो सॉल्यूट या सॉल्वेंट है वो इतने छोटे हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है उनको वे करना, तो हम उसको पार्ट्स में लेते हैं, पार्ट्स के हिसाब से कि कितने पार्ट हैं, और उसको पर मिलियन के हिसाब से काउंट कराते हैं। सो पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट को हम सॉल्यूट की तरह यूज करने वाले हैं, अपॉन
टोटल नंबर ऑफ पार्ट ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन। अगर वो बाइनरी है तो 2 ही होंगे, अगर ज़्यादा है तो बहुत सारे हो सकते हैं। इनटू 10 to the power 6 दैट इज 1 मिलियन। तो ये हो जाएगा पार्ट्स पर मिलियन, ppm। अब ये है मोल फ्रैक्शन, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत पूछता है ये। मोल फ्रैक्शन को हम नॉर्मली स्मॉल x से डिनोट करते हैं एंड इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। क्योंकि हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो बाइनरी सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट A है और दूसरा कंपोनेंट B है, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, अब इसके मान लीजिए कि नंबर ऑफ मोल्स Na है और इसके नंबर ऑफ मोल्स Nb है। अगर ये सॉल्यूट है तो मोल फ्रैक्शन फॉर A, तो इसको हम लिखेंगे XA। क्या लिखेंगे हम? इसको लिखेंगे XA एंड XA इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb, that is the number of moles of the component, number of the moles of the component A upon total number of the component, total number of the mole of all component। अब 2 ही component हैं A और B, तो इनको भी लिख देंगे। सिमिलरली अगर हम B के मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे, ये हो जाएगा XB इज इक्वल टू NB डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb। तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन। कैलकुलेशन कर सकते हैं इसका, बिल्कुल। मोल फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि इसके लिए मोल कॉन्सेप्ट जो क्लास 11th में आपने पढ़ा था वो याद रखना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद मोलैरिटी और मोलैलिटी है, उसको भी देखते हैं। सो मोलैरिटी कैपिटल M से इसको डिनोट करते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पर लीटर of the solution. It is the volume of solution in liter, that is per liter of the solution. It is what? Molarity. Next one is the molality, denoted by small m, and it is the moles of solute per kg of solvent. यहाँ पे solution नहीं होगा, यहाँ solvent होगा। Moles of the solute divided by mass of the solvent in kilogram in kg। ठीक है, तो ये थे बेसिक एक्सप्रेशंस फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, और इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं। कुछ न्यूमेरिकल को मैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट में सॉल्व भी करूँगा और उसको एक्सप्लेन भी करूँगा, अच्छे से समझाऊँगा भी। तो देखते रहिए, अगर इससे कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब ये जो शुरू के 6 आपने देखे वो नॉर्मली टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते हैं, बट जो मोलैलिटी है ये टेम्परेचर से अफेक्ट होता है, इसकी रीडिंग्स आगे पीछे हो जाती हैं। तो इस पार्ट में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए।